लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम चाय पकौड़े के चक्कर में हम इतना खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे असर पड़ता है। पर ठंडी का मौसम और खाना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं फैमिल्स लाइव है, तो हम आपको एक खाने का एक बहुत ही अच्छा रेसिपी देने वाले हैं। और फैमिल से है तो हेल्दी तो होना ही है। तो उसके लिए हमारे साथ में है एक खास गेस्ट, होम शेफ पूर्णिमा कनौजिया जी। वो बनाएंगी कुछ खास। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं वो क्या बनाने वाली है। हाय पूर्णिमा जी, कैसे हेलो हो? खुशबू। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और जैसे आप सर्दियों का मजा ले रहे हो, मैं भी बॉम्बे में थोड़ी थोड़ी सी सर्दी का मजा ले रही हूँ। जैसे आपने राइटली कहा कि सर्दियां हैं, खाने पीने आप का तो ऐश है, मजा है, खाइए पिए एंजॉय कीजिए। सो आज मैं एक बहुत ही हेल्दी डिश बनाने वाली हूँ। So before I go to my recipe or before I name the dish, a little introduction about myself. I am Purnima Kanodia, founder of My Food Journey. That's my blog page, and my culinary journey or my exploratory journey has started almost a year ago. And I've experimented with a lot of things, and today is another stint. And I'm a big fan of Fam Health page, and I do keep बहुत regularly तो नहीं होता, but I do keep a tab on various posts. So this is a wonderful platform जहाँ पे आपको एक ओके। total health solution मिलता है. So you not only have great chefs showcasing their dishes, but you also have professionals like doctors and nutritionists and others who give you such fabulous tips. So this is just a wonderful page. So introduction के बाद let's go to the day. थैंक यू सो मच। Yeah, most welcome, Khushbu, most welcome. ओके। Yeah, so we are going to go. सो पुण्यवती, आप जो आज बनाने वाले हो, आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप क्या बनाने वाले हो और किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। तो अगर आप हमें इंग्रेडिएंट्स दिखा दीजिए और कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो आप प्लीज हमें बताइए। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। Definitely. So we are going to go straight to the ingredients. सबसे पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ. It's ओके। going to be a yummy pumpkin soup with amaranth cracker and a cheat cheesy dip. So we are talking of good health. So जो भी हम बनाएंगे वो सब कुछ healthy होगा. So pumpkin soup is a very healthy soup and preferably for people who are undergoing a weight loss program या फिर जो बहुत diet conscious हैं, उनके लिए सबसे beautiful और बहुत ही healthy soup है. Pumpkin by itself is a wonder ingredient. It is very rich in vitamin A, vitamin C, vitamin E, absolutely awesome in minerals, high fiber food. And जो carbs है इसमें, that is just beautiful, a very healthy carb. So kind of sort of also falls into vegan category क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा I'm going to be garnishing it with fresh cream, so I would not at this moment. This recipe would not go under vegan category, but definitely without the cream. So my hero ingredient is pumpkin. ये मैंने half kg pumpkin लिया है. मैंने इसे with skin रखा है फिलहाल. Okay. And with the pumpkin soup, I've also used one medium size onion, chopped onions. I'm going to use some of garlic and a little piece of ginger. Not whole, I would preferably do a small part of it. I've already skinned and kept it. So this is going to be my ingredients for this soup. Salt, of course. Garnishing के लिए fresh cream है. Some bit of coriander, and I'm going to use olive oil as a fat in the soup. You can also use ghee or butter. Butter is preferred, but let's talk about good health and good stuff. मेरे क्रैकर में 1 कप मैंने amaranth का आटा लिया है. Amaranth is nothing but rajgira. So this is 1 cup rajgira आटा. Very simple sweet सी recipe है. Rajgira atta mein I'm going to be using a mix of seeds. Basically, these are, I keep forgetting this. So ओके। sesame seeds hai ye यस। basically. Sorry, these are sesame seeds, both black and white. And I'm also going to be using olive oil to knead the dough. So that's what it is. And I think we can start. We are good to start. So what I'm going to do is I'm going to first grill ओके। this तो अभी pumpkin. Yeah. ठीक है, तो फिर पूर्णिमा जी आप बनाना शुरू कर दीजिए और फिर हम देखते हैं कि जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी, क्योंकि मेरे मुंह से पानी अभी से ही आना शुरू हो गया है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दिस, बिकॉज इसके अंदर जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो एक्चुअली वेरी हेल्दी लग रहे हैं।
तो बिल्कुल, शुरू very कर very देखते हैं, हम कहाँ healthy से and शुरू there करना is है अभी, बताइए। yeah. So सबसे पहले हम इसे de-seed करेंगे. We want to remove these ओके, seeds. तो आप कद्दू से शुरू कर रही हैं। हाँ जी, कद्दू से शुरू करते हैं. ओके, और हाँ, मैं एक ingredient तो पूर्णिमा सॉरी जी, बताना हमारे भूल जो गई. व्यूअर्स है ना, वो हिंदी, Yes, खुशबू, आप कुछ बोल रहे थे. ओके, सो पूर्णिमा जी आप थोड़ा हिंदी में बोलिए, क्योंकि हमारे पास जो फैमिलीज के जो व्यूअर्स है वो थोड़ा हिंदी ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इतनी Okay, अच्छी okay, डिश okay. आप बना रहे हैं, अगर उसमें हम एक आध शब्द मिक्स हो गए तो अच्छा, आपको पर्सनली बिल्कुल बताइए, बिल्कुल, आपको कद्दू पसंद है? बहुत पसंद है मुझे कद्दू की सब्जी. पूर्णिमा आई जी, आपको पर्सनली कद्दू पसंद है क्या? यस यस, बहुत पसंद है कद्दू. मुझे कद्दू की सब्जी पसंद है, पेठा पसंद है, और कद्दू का तो सूप डेफिनेटली पसंद है. सो आई हाँ, लाइक वो कद्दू. पेट, इस मामले में आई एम लाइक लिटिल बैकवर्ड्स, बिकॉज कद्दू ना, बट जब वो किसी अगर कद्दू को जिस तरह से भी बना रहे हो, अगर वो टेस्टी है तो पसंद है, वो नहीं पसंद। या तो मुझे कद्दू की सब्जी गलत तरीके से बनाने आती है, या तो नेवर नो क्या है वो। आप मेरे हाथ का लेकिन मैंने खाओगे तो पंपकिन आपको सूप जरूर पसंद ट्राई आएगा. किया था, सो इट वाज वेरी टेस्टी। और आप मुंबई में हो तो आई कैन कम एंड मीट यू कद्दू का सूप खाने के लिए, अरे बिकॉज आई एम बाप फ्रॉम रे, मुंबई इटसेल्फ। प्लीज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. या तो मैं मेरे कद्दू को हल्का सा चलिए, ऑलिव ऑयल में हाथ आपसे से रोज रख के क्यों नहीं? थोड़ा सा ग्लेज कर रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू ग्रिल इट ओके, डायरेक्टली ऑन द फ्लेम. Here it is. आप देख सकते हो. हल्का सा इसको हम we'll do it. मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर देती अच्छा, आप इसे मीडियम फ्लेम में कर रही हो या हाई फ्लेम में? बिकॉज वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ये होने में। हूँ. नहीं नहीं, जरा भी नहीं. तो बहुत जल्दी हो जाएगा. कद्दू की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी गलता है. ओके, सो विद द स्किन इसको चार कर रहे हैं हम. ग्रिल कर रहे हैं, राधा, सॉरी, नॉट चार, बिकॉज हम इसे ज्यादा जलाने ऐसे नहीं है. हल्का सा सॉफ्ट हो जाना है, जस्ट इनफ फॉर अस. अब मैं फ्लेम फास्ट कर रही हूँ, so we just let it cook a little. तो वो जितने देर में रोस्ट होगा तब तक आप क्या करेंगी? मतलब आपका सेकंड स्टेप शुरू करेंगे और यू विल वेट जब तक वो हो हम ना जाए। शुरू करेंगे. वी गोइंग टू स्टार्ट विद क्रैकर. ओके. अच्छा, मैं एक इंग्रेडिएंट ओके, सॉरी पहले बताना भूल गई थी कि वेजिटेबल स्टॉक जो मैंने पहले से बना के रखा है. सो वी आर गोइंग टू यूज वेजिटेबल स्टॉक. ओके, Basically that's going to be more as a volume के लिए in the soup. So instead of adding plain water, अगर हम और मैंने देखी इसकी अगर किसी को पता या आप कुछ बोल रहे थे खुशबू? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर जिन लोगों को वेजिटेबल स्टॉक के बारे में नहीं पता है, उसे कैसे बनाना है, तो आप एक ओवरव्यू दे दीजिए कि कैसे बनाएं वेजिटेबल स्टॉक। ऑब्वियसली बॉइलिंग वेजिटेबल वाटर, बट स्टॉक के इट विल लिए बी ग्रेट मैंने टू लिसन फ्रॉम यू। यस, तो वेजिटेबल स्टॉक के लिए मैंने बेसिकली लिया है कुछ सब्जियां ली थी. आई हैव टेकन अप्रोक्सीमेटली 1 onion, 2 capsicum. I've taken around 3 carrots, medium size, okay, and a handful of French beans. So इन सबको मैंने roughly chop करके पानी में डाला है to boil. A little bit of salt, a small, very small piece of ginger to add some flavor, and I have added 2 bay leaves again to add flavor to the stock. So बस तेज इसको एक पत्ता, slow हाँ, gas पे मैंने around 20-25 minutes उबलने दिया है पानी में. एंड वो पानी मैंने छान दिया है. वेजीज मैंने रखी है. सो एक्चुअली देयर आर 2 ways यू कैन डू दिस स्टॉक. एक तो आप पानी छान के जिस पानी यूज करें. एक, अगर आपका कोई लिक्विड या बहुत पतला सूप है, एनी सूप व्हिच इज मोर वाटरी, उसको थिक करने के लिए यही स्टॉक यू कैन ग्राइंड विद द वेजीज. तो जो आपका स्टॉक बनेगा वो थिक बनेगा. सो इन दैट यू ओके, कैन यूज इट इन मल्टीपल सूप्स. थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये कहीं ओवर ना हो जाए.
वो एक्चुअली बहुत जल्दी रोस्ट होने लग गया है, वो तो देख के पता चल रहा है। एग्जैक्टली तो हमें ज्यादा इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहीं ओवर ना हो जाए, सो दैट हमारा सूप में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो मतलब एक हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास अगर सूप के लिए जाना है तो पम्पकिन सूप। जिन लोगों को पम्पकिन पसंद नहीं है उनके लिए भी मैं कह रही हूँ एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज मुझे पम्पकिन जरा भी नहीं पसंद था, बट मैंने पम्पकिन सूप ट्राई किया है तो इट वाज रियली वेरी नाइस, और हेल्दी है तो फिर और क्या चाहिए। सो आप बिल्कुल जरूर ट्राई बिल्कुल। करो, उसकी रेसिपी तो हमारे सामने तो बना ही रही है हाँ जी हाँ जी। पूर्णिमा जी, तो कीप वॉचिंग। तो हम इसे रोस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे फ्लिप करते रहेंगे, डू इट विद हैंड। ओके, तो जब तक ये थोड़ा सा रोस्ट हो अच्छा रहा तो है। जैसे कि आप ये, हाँ जी। सो पूर्णिमा जी आप ये जो रेसिपी बना रही हैं इसके अंदर जो आपने एक इंग्रेडिएंट यूज करने वाली है अमरंत, उसके हाँ बारे में बताइए, बिकॉज मुझे इसके पहले अमरंत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतनी इसके अंदर इतनी सारी बेनिफिशियल चीजें हैं। लाइक हम बिल्कुल रेगुलर जो मैदा शैदा खाते बैठते हैं जिसकी वजह से हमारी तबियत खराब होने के कितने ज्यादा चांसेस होते हैं, व्हाई नॉट यूज दिस काइंड ऑफ सुपर फूड्स मैन, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप जरा बताइए इसके कुछ खास बेनिफिट, मतलब ये किस चीज के खास लिए है। बेनिफिट ये है कि दिस इज अ ग्लूटेन फ्री ऑप्शन, so people who are conscious, जो गेहूं नहीं खाना चाहते हैं या they want to cut down on the gluten intake, so this is a very good option। आप इससे रोटियां, I mean, this is राजगिरा, हमारे यहाँ राजगिरा in Indian cuisine, is not actually, it is not a wonder food for us because सदियों से जमानों से ये हमारे डाइट का पार्ट रहा है। तो पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो आई वुड नॉट कंसिडर इट, यस इसकी बेनिफिट्स हमें अब मालूम पड़े हैं या अब ज्यादा इसकी अवेयरनेस हुई है, जैसे टिपिकली राजगिरा, राजगिरा के लड्डू, राजगिरा की चिक्की, उपास में आमूमन हम खाते ही हैं, राजगिरा की पूरी बनती है उपास में। So it is just taking the same local ingredients to another level. So that is what basically amaranth is. थोड़ा सा fancy name amaranth, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज है but this is अपना very own देसी राजगिरा का आटा। ओके, वैसे मैंने जो पढ़ा था इसके बारे में इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स थे, लाइक जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, प्रोटीन रिच होता है, विटामिन है इसके अंदर, फिर Yes, ग्लूटेन फ्री फ्लोर ऑप्शन आपके पास, इसके लिए हमारे पास ये अमरंत बिल्कुल यूज कर बिल्कुल। सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके अंदर। जैसे हाँ जी आपको पता है ये खाने से आपकी जो कैंसर की जो रिस्क है वो भी कम होते हैं। तो बिल्कुल और बिल्कुल। इसी प्रकार से हमारे पास फैमिली के पास जैसे ये रेसिपी बनाई जा रही है वैसे ही बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमारे पेज बिल्कुल। पे इस सेशन के बाद जरूर देखिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपीज है। तो डू Yes. वॉच इट एंड मेक इट एट योर होम एंड कीप हेल्दी एंड सेफ। सो लेट्स सी अभी क्या हो रहा है पूर्णिमा जी के घर। तो हम इसको जी रोस्ट ये कर रोस्ट रहे हुए हैं, कि नहीं। बस हो रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है ये। मैं हाँ ज्यादा फास्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, वी आर गोइंग लाइव। अदरवाइज तो फास्ट करके घर का जो ट्रिक होता है we could have done, हाँ हाँ so हाँ। but then because you're going live, let's be a little cautious। ओके, अच्छा अच्छा, इसको हम वो डायरेक्ट जैसे कि हम आपको पता है वो बाटी चोखा बनाया जाता है यूपी में, तो दे यूज्ड टू हैव दिस कोल वाला जो अंगठी बोलते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली वो हाँ हाँ बनाते हैं, तो ऐसे भी हम roast कर सकते हैं क्या इसको पम्पकिन को। बिकॉज अक्सर हाँ जैसे हम जब भरते बनाते हैं बैंगन आलू ये सब भी हम वैसे डायरेक्टली रोस्ट करते हैं, उसमें ना काफी स्मोकी फ्लेवर आता है, क्योंकि लेकिन वो वाली फैसिलिटी अभी रेगुलर होम पे अवेलेबल होती नहीं है ज्यादातर। बट तो हम वैसा भी अगर हम चाहे तो अगर कर सकते हैं राइट, उससे yes कुछ yes, तो फ्लेवर शायद थोड़ा और एनहेंस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, why not। so this is in fact one of those versions only। अभी अभी I mean, मुझे चूल्हे का एक्सपीरियंस मेरी नानी के घर से था। तो जब मैं छोटी थी तो अच्छा टिपिकली चूल्हे पे रोटी बनाना या खाना तो पहले चूल्हे पर ही बनता था। सो आई रिमेम्बर किसी जमाने में मैंने वो सब चीजें देखी हैं। so doing it on a gas obviously is a different thing, but जो चूल्हे का स्वाद है
you know, वो सौंधा सा हाँ, जो स्वाद है, that only adds to the smokiness. But we are doing it on a I gas. totally agree. I totally agree because like obviously मेरे जो जनरेशन में है वहां पे ज्यादा लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं। हमको रहती है ना वो फैसिलिटी चाहिए होती है गैस स्टोव हाँ exactly. एंड ऑल। लेकिन मैं जब अपने नेटिव में गई थी तो वहां पे लाइक वो अभी भी ना, अभी तो नहीं बट काफी साल तक ना वो चूल्हे, मिट्टी के जो चूल्हे होते हैं ना उसका हाँ इस्तेमाल किया जाता था। एंड प्लस हमारे जो खेत में ही काफी सारे वेजिटेबल्स ग्रेन्स अवेलेबल होते थे। तो हाँ हमको मतलब मार्केट में जाके वो प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस से जो गुजरती है वेजिटेबल उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली अपने खेत से लो भिंडी उठा लिए, बैंगन उठा लिए, बना दिया कुछ ना कुछ। तो लेकिन आई बिल्कुल टोटली अग्री कि वो जो टेस्ट होता है ना चूल्हे पे जो खाना बनता है वो बहुत अलग होता है। जो गैस स्टोव वगैरह है बिल्कुल वो तो हमारी फैसिलिटी के लिए, बस ये है कि हमको बनाने बिल्कुल का तरीका आना चाहिए, वरना हम टेस्ट तो गैस पे भी ला सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल yes. So we are going to let this roast and I'm going to come back to the amaranth. हम राजगिरा का डो प्रिपेयर करते हैं. So just give me a minute, I'll get a glass of water. ओके। तो इस तो आटे में ये हम राजगिरा। बेसिकली, हाँ ये राजगिरा का आटा है, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे फॉर टेस्ट. I'm adding ओके। just a pinch of it and we are going to add a little olive oil, teaspoon or so. अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो उसका कोई हेल्दी सब्स्टिट्यूट है हमारे पास? Uh, मतलब ऑलिव ऑयल तो हेल्दी है लेकिन अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो कैन वी यूज सम अदर वेजिटेबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल yes, या बटर, any जैसे कि refined आपने oil पहले या बताया any था? vegetable oil, preferably strong oils avoid कीजिए, जैसे तिल का तेल वगैरह हो गया, वो थोड़ा क्या strong flavor हो जाता है, so वैसा कुछ अवॉइड कीजिए. हम्म। लेकिन जो लाइट फ्लेवर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी हेल्दी वो तो वर्जन. और यस। हाँ, एंड यू कैन यूज canola oil also, but I have never used that. So any vegetable oil basically can go. And if you are in a cheat mode, आप मतलब बटर भी यूज कर हेल्दी सकते हैं. वर्जन से थोड़ा सा अगर लेवल कम कराना है तो हम दूसरा ऑयल चूज कर सकते हैं। बटर, ओके yes, ओके butter is फाइन, तो really the फिर best option there. ऑलिव ऑयल पे स्टिक करें तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी. आप देखिए, जब मैंने इसमें ये ऑयल मिक्स हाँ, कर रही बट हूँ हेल्थ ना, कॉन्शियस के तौर पे अगर देखा जाए तो ऑलिव ऑयल। यस यस, हाँ। सो मैंने ओके। इसमें ये ऑयल को मैं थोड़ा सा अच्छा मिक्स कर दिया, जैसे हम टिपिकली बोलते हैं, मोइन बनाया है, हाँ। बिकॉज मेरा ओके। क्रैकर बनना है तो मुझे वो क्रंची चाहिए. हाँ। सो जब हम इसको थोड़ा सा तेल में या कोई भी फैट में डाल के कोई भी फ्लोर को इस तरह मिक्स करते हैं ना, सो इट एड्स टू द क्रंचीनेस. ओके तो अभी मैंने ना आप पानी डाला है ना कुछ डाला है, सो आई एम अच्छा जस्ट मिक्सिंग इट. डायरेक्ट ऑयल के साथ में उसे लाइक हाँ जी, ताकि वो लम्स ना रहे ज्यादा ज्यादा, राइट? लम्स भी नहीं रहे और क्रैकर क्रिस्पी रहे फॉर द क्रंच. अच्छा। So this is ओके। typically to add the crunch in the cracker. अच्छा, मुझे ये नहीं पता था बिकॉज कभी कभी क्या होता था कि हम इसको मतलब ऑयल और जो भी हमारा फ्लावर होता है उसको हम पहले इसलिए मिक्स करते हैं ताकि वो बाद में जब हम पानी या दूसरी लिक्विड को यूज करते हैं हाँ, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, बट इससे क्रिस्पीनेस आती है ये वाला मुझे नहीं पता। तो पूर्णिमा जी थैंक यू फॉर दिस, आई डेफिनेटली गोना ट्राई दिस बिकॉज मुझे सच में नहीं पता था कि वो क्रिस्पीनेस के लिए होता है। in fact अगर सो आई आपको वुड रियली थैंक यू पर्सनली फॉर दिस। most welcome, most welcome. In fact अगर आपको आपकी पूरी या कोई भी क्रंच करना है, जैसे मठरी वगैरह बनानी है, तो मठरी में भी आटे में आप पहले घी या जो भी हाँ हाँ। फैट यूज कर रहे हैं, ऑयल, गरम तेल, तो डाल के उसको जब आप ऐसे मिक्स करेंगे, आप तो रियली मिक्स इट वेल. उसका देखो टेक्सचर चेंज हो गया है, फ्रॉम अ फाइन फ्लावर इट हैज बिकम अ लिटिल ग्रेनी नाउ. तो बेसिकली वो पूरा ऑयल अब्सॉर्ब करके वो फ्लावर रेडी हो गया है. ओके सो अभी पंपकिन भी रोस्ट हो गए हैं लगभग हाँ, हमारे ऑलमोस्ट सूप के लिए। ऑलमोस्ट हो गया है, बिकॉज मेरे पीसेस थोड़े से बड़े हैं, चंकी पीसेस. अच्छा, एक चलो मैं ट्रिक बता देती हूँ पम्पकिन का. ये ऐसे रोस्ट हम माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं. आई हैव एन ओटीजी, सो मैं ओटीजी में करती हूँ, बिकॉज ओटीजी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है. आपको ऐसे ही पम्पकिन के पीसेस चंकी काटने हैं, थोड़ा सा उसमें ऑयल ड्रिजल करना है, okay, ओके a little bit of salt, and you just bake it 150 to 180 degrees at least 20-25 minutes. उसको आप ग्रिल कीजिए. ओके मैंने कहा गलती से तो बेक मतलब कर वो दिया. भी एक
फटाफट एक ट्रिक हो गया है हमारे पास पम्पकिन को रोस्ट करने के लिए। हाँ, और उसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं ग्रिल होने में, बट उसमें भी बहुत अच्छा होता है। So ओके, that's the- वैसे आपके यहाँ पे मौसम थोड़ा मतलब ऑब्वियसली बॉम्बे में उतनी ज्यादा ठंडी होती है हाँ, आप तो नहीं, बॉम्बे बट वाले, आपको शुरू पता हुई है होगा। अभी तक, लेकिन नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है। हाँ आई टोटली एग्री, मतलब मतलब अभी अभी हल्की हल्की शुरू हुई है। हाँ, और 2 दिन सरप्राइजिंगली से इफ तो यू विल बी इन शॉक कि आज हल्की सी बारिश हुई थी एग्जैक्टली, तो अब शायद थोड़ा सा मौसम और अच्छा होगा। मॉर्निंग में। जब मैंने देखा बारिश हुई हल्की सी, I was like, हाँ, और आज आज मॉर्निंग में हल्की जो बारिश हुई है उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड में इम्प्रूवमेंट हुई है। आज से ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा ठंड शुरू हो रहा है हाँ ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो सो मैं थोड़ा आपने थोड़ा पानी पानी कितनी डाल के, क्वांटिटी में मिक्स किया है उसमें? देखिए इसमें बहुत थोड़ा पानी डलेगा, हमारा ओके, आटा भी कम है, 1 कप है। सो कॉन्शियसली मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। आई थिंक दिस विल शुड नॉट बी मोर देन 1/4 कप, से ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही लगेगा। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही तो हूँ, इसे बिकॉज अच्छा आटा आप भी इसको हमें ना बहुत। हाँ जी, बोलिए, टेल मी। ओके, नहीं आप कुछ नहीं, बोल मैं रहे थे बस वही कुछ? देख रही थी। मैं बस आई एम जस्ट एक्साइटेड कि कब बने और मैं कब खाऊं। ऑब्वियसली वर्चुअली तो नहीं खा सकते, बट एटलीस्ट थोड़ा तो अंदाजा रहेगा। यस, अच्छा, इतनी क्वांटिटी में कितने क्रैकर्स बन पाएंगे? इसमें मेरे हिसाब से आराम से हमारे 10 से 15 क्रैकर्स बन सकते हैं, डिपेंडिंग 10 ऑन से द साइज। 15? अभी आपको अगर बड़े चाहिए, हाँ, अगर हाँ, आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े कर सकते हैं, या फिर अगर आपको छोटे चाहिए तो डिपेंडिंग, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, आपको क्या शेप देना है क्रैकर का, या ओके, यू वांट टू मेक इट लाइक अ टोस्टी, छोटे छोटे, जैसे सेव पूरी साइज होता है वो देना हाँ, है। सो हाँ, डिपेंडिंग हाँ, ऑन यू, और ये हमें नीड करने में भी, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है अभी, टू मेक इट सॉफ्ट एंड मैनेजेबल। देखिए हमारा ओके, डो अच्छा सॉफ्ट हो गया है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सॉफ्ट डो से क्रिस्पी क्रैकर निकलेंगे। बिल्कुल, सो दिस इज है ना? जस्ट रेडी। हम इसको 2 ओके, या 5 मिनट के लिए रख देंगे, ओके, जब तक हम वी लेट ओके, दिस रेस्ट फॉर अ व्हाइल। मैं एक क्विक हैंड वॉश कर लेती हूँ, तो हमारे ओके। तो हमारा डो रेडी है और हमारा पंपकिन भी रेडी है ऑलमोस्ट। और अब हमारे पास अभी पंपकिन का बनेगा सूप, और जो हमारा क्रैकर का जो डो है उसका बनेगा अच्छा खासा क्रिस्पी क्रिस्पी क्रैकर्स। और उसके साथ में जो चीजी डिप है, एंड मैं आपको बता दूं फैमिली के व्यूअर्स, हम चीज जैसे कि हम कहते हैं कि चीज इज नॉट वेरी हेल्दी, बट यहाँ पे चीजी डिप इन द सेंस चीज टेक्सचर के तौर पे वी आर गोइंग टू यूज अ योगर्ट जो बहुत हेल्दी होता है। सो डोंट वरी गाइस, फैमिली का वीडियो है तो हेल्दी ही होगा। ओके, सो अभी पूर्णिमा जी आएंगी, क्या, तो मैं सो अपने व्यूअर्स तब तक ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने जैसे कि पहले बताया कि फैमिलीज के वॉल पे बहुत सारी अच्छी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज है। और हम जब कहते हैं कि हेल्दी रेसिपीज, तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस होते हैं, बहुत सारे डिजीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो आप जरूर जाइए, देखिए वीडियो, और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, माई फैम हेल्थ पर। ओके, लेकिन अभी नहीं, इस सेशन के बाद ऑब्वियसली, बिकॉज अभी हमारा स्पेशल रेसिपी बनाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है पूर्णिमा जी बन गया है, वो रोस्ट हो चुकी है पंपकिन। थोड़े से रह गए, बाकी तो हो हाँ, गए तो सबसे हम लगभग। क्या करते हैं, हम हमारा बाकी का पंपकिन, इसकी स्किन निकाल लेते हैं, सो वी मेक इट रेडी टू बी प्योरेड। ओके, ओके, मुझे स्किन नहीं चाहिए इसकी। देखिए ये कुक हो गया है अंदर से, एकदम हम्म, सॉफ्ट मशी नहीं हुआ है, but then that's okay. ओके, You don't need to make it very soft and mushy.
अच्छा, वो तो वैसे भी ग्राइंड होगा और उसके बाद वापस से कुक होना है ना। हाँ, यस यस। जैसे ये स्किन है, हम इसका स्किन निकाल रहे हैं। हम्म। और ये जो आप थोड़ा सा बर्न्ट वाला देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू कीप इट बिकॉज दिस एड्स टू द स्मोकीनेस। ओ। जैसे भरता है, जब हम भरता बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो वो लगता ही है, और थोड़ा बहुत तो वो चार होता है, बट दैट इज हम्म। व्हाट इट एक्चुअली एड्स टू द टेस्ट ऑफ द होल थिंग। ओके, तो वो जो हल्का हल्का जो ज्यादा मतलब थोड़ा वो हो गया उसको निकालना है, बाकी तो हाँ हाँ टेस्ट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पंपकिन के अलावा जो बाकी सारी सब्जियां हाँ हैं उनका भी कुछ ना कुछ अलग अलग रेसिपी बन सकती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या कहते हैं, एक लौकी हो गई। लौकी की तो मिठाई बहुत पसंद आती है, लौकी का रायता बहुत पसंद आता है, लेकिन उसकी लौकी का सब्जी डिपेंड करता है, तो उसका भी कुछ अलग तरीका होगा, कुछ टेस्टी वाला और टेस्टी वर्जन में कुछ। आप लौकी और चने की दाल खाइए। आई थिंक इट इज वन ऑफ द वेरी रिच, हेल्थ वाइज भी रिच है, टेस्ट वाइज भी ऑसम है। यू कैन एक्चुअली, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, सो जो दाल मखनी का मेथड है, वो मेथड यूज करके आप हाँ। कभी ट्राई कीजिए लौकी की और चने की दाल। आई एम श्योर आप जिंदगी भर you're going to remember that taste, and you're just going to love it. So actually कुकिंग का क्या है ना खुशबू, आई मीन दिस इज माय फंडा, कि आप हम्म। जितना प्यार से बनाएं, आप हम्म। जितना पेशेंस से बनाएं, सो उसमें वो हम्म। स्वाद निखर के आता ही है। तो I mean, I feel the key ingredient to any आई good एग्री, recipe is आई love. टोटली एग्री। So आप जितना प्यार से बनाएंगे, जितना उसको अटेंशन देके बनाएंगे, it's going to be just amazing. And of या। course, ingredients very important. We cannot ignore. We cannot say that ingredients don't matter. Of course, the quality. आजकल तो काफी लोग ऑर्गेनिक भी प्रेफर करते हैं, so better the ingredient, better the health. Simple as that. सो ट्रू। और प्लस प्रोसेस की भी बात डिपेंड करता है ना, बिकॉज कई लोग होते हैं जिनके दिमाग में आता है, जैसे मुझे ऐसा, जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता है भाई कुकिंग इज नॉट अ बिग डील यार, सब चीज मिलाने हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। करना है वो करना है। और जैसे जैसे मैंने बनाना सीखा तो आई अंडरस्टूड कि क्वांटिटी क्वालिटी प्लस कितने देर पकाना है, कैसे पकाना है, उस पर भी डिपेंड Exactly. करता है। बिकॉज एक चीज जरा सा भी यहाँ से वहां हो जाती है ना, पूरी डिश का जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, उसका प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। मतलब अगर हमको पालक पनीर बनाना है, अभी पालक को अगर हम ओवर कुक कर देते उसको वो जो रिच ग्रीन कलर जो आता है वो नहीं आ पाता। हाँ, तो कुकिंग आई right. थिंक इट्स एन आर्ट, और जिसमें थोड़ा जो माइन्यूट डिटेल पे हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पंपकिन सच में काफी थोड़ी अच्छी लग रही है, इसकी कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। मैं आपको खुशबू नहीं बता हम्म। सकती, इसकी खुशबू लग रहा इतनी है बढ़िया आ रही ब्यूटीफुल है। पंपकिन का। ओ। ये कई कई डिजिटल, चीजें ये तो जो एकदम टेक्नोलॉजी सॉफ्ट ना, हो। इसका गैर फायदा सिर्फ यही है। हाँ कोविड की वजह से हम सब लोग वर्चुअल पे तो आ गए, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है कि हम जब खाने की बात करते हैं तो ना उसकी खुशबू आ पाती है, ना हम उसे टेस्ट कर लेते हैं, बस देख के अपना मन ललचा के बैठ जाते हैं। तो exactly. ये बहुत ही बड़ा गैर फायदा है टेक्नोलॉजी का, आई से वही तो सीरियसली। फर्क है रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में। दैट्स एग्जैक्टली द बिग डिफरेंस। जो आप रियल पंपकिन वर्ल्ड में कर सकते हैं, जो एक्सपीरियंस आपके रियल वर्ल्ड के हैं, वो आपको वर्चुअल में कोई मिलेंगे। नहीं मैच, ऑब्वियसली उसको कोई भी कॉम्पिट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट एब्सोल्युटली इज यूनिक, दैट इज डिफरेंट, दैट इज अमेजिंग। एब्सोल्युटली। कब तक वर्चुअली टाइम बचता है, आई एग्री, बट कब हाँ, तक? ज्यादा देर कब तक? टाइम बचा के कहाँ करें, क्या करेंगे उन टाइम का। और क्या, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। पंपकिन का कलर काफी सुंदर लग रहा है, बहुत ही यस, एंड ब्राइट एकदम, बहुत ही अच्छा मैं लग रहा है ग्राइंडर वो ले मुझे। रही हूँ। हम्म। ग्राइंड दिस, मैं इसको और थोड़े से छोटे पीस कर लेती हूँ, so that it's easy, we are saving on time. यू आर एडिंग, अच्छा वही डाल रहे हो आप, पंपकिन हाँ डाल हाँ, रहे हो ना तो। पंपकिन ही थोड़ा सा छोटा कट करके, अभी इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पंपकिन ही ग्राइंड होगा। और इसको अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्टी है ग्राइंड करने में, जो होना तो नहीं चाहिए, आई विल ऐड वेजिटेबल स्टॉक। ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू कुकिंग ना खुशबू, हम इंग्रेडिएंट्स पे तो ध्यान देते हैं, हम्म। हम
शायद एट सम पॉइंट इन टाइम मेथड ऑफ कुकिंग पे भी ध्यान देते हैं, बट जो बहुत ही कॉमनली चीज मैं देख रही हूँ, यू नो, द वे वी ईट, हाउ वी आर ईटिंग आवर फूड, यू नो, that is also need to be taken care. You got to be very mindful. ट्रू ट्रू आप, you know, I was never into fitness, या मैं इतने वर्कआउट्स वगैरह में पहले नहीं थी, तो बट एक पॉइंट आया कि जहाँ रियलाइज हुआ कि बस अब बहुत ओवरवेट हो गया है, यू नो, कुछ तो करना चाहिए हेल्थ का। तो दैट्स व्हेन इवन आई बिकेम माइंडफुल कि क्या खा रहे हैं, कैसे स्नैकिंग है। नहीं तो मेरे कॉलेज डेज में बीइंग अ मुंबईकर, आई थिंक 3 साल के ग्रेजुएशन में मैंने सिर्फ समोसे खाए हैं, समोसा पाव, समोसे, और एनी, यू नो, चलते चलते कोल्ड ड्रिंक ले लिया, कोक, पेप्सी। तो आई हैव आल्सो लिव्ड दैट लाइफ। देन कॉर्पोरेट में काम करके लंच लेके तो जाते थे, खाने का टाइम नहीं होता था, तो इरेटिक हाँ ये टाइमिंग्स, ट्रू all ट्रू these adds यहाँ to the stress of your health. पे मतलब देयर इज नो टाइम, पकड़ लिया हमने, कभी समोसे खा लिए, कभी वड़ा पाव खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, या कुछ ना कुछ मतलब ऑन द वे होता है, On the go. And बॉम्बे तो आपको पता है, समय तो की बॉम्बे कमी है लाइफ, बस। हाँ, we live by the clock. आई टोटली एग्री, यहाँ पे किसी के पास By the clock. या So लेकिन that is what. फूड में ना एक ही बहुत ही यूनिक सा एक चीज है। हम जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, मतलब लगभग 4-5 साल, जब व्हेन आई वाज लाइक जंक फूड फ्रीक, मैं मतलब मुझे जो मिलता मैं रोज खाती थी। बात मेरे दिमाग में एक ही होती थी कि भाई समोसे खा रहे हैं, क्या है उसके अंदर, आलू तो है, आलू तो हेल्दी होता है, राइट। हाँ, फिर हम जब बर्गर की बात करते हैं, भाई उसके अंदर तो टमाटर होते हैं, कांदे होते हैं, प्लस वो पैटी होती है, उसके अंदर भी सब्जियां होती है, या फिर आलू होता है, या फिर अगर हम मीट की बात कर ले चिकन होता है, ये सब तो हेल्दी है। क्यों कहते हैं कि बर्गर खराब है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आया कि ओके, आप पहले बता दीजिए, वो कंप्लीट कीजिए। सॉरी खुशबू, मैं ग्राइंड कर रही हूँ। कोई ना, अब उतना तो होना ही है, हेल्दी चीज है, उसके लिए उतना तो होना ही है। तो मैं कह रही थी वही कि आलू हो गया, बर्गर की पैटी हो गई, फिर हम जो भी जंक फूड दुनिया भर की खाते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आलू होता है, मैदा होता है, सब्जियां होती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको बनाने का तरीका, और वहीं पे हमारी हेल्दी तरीका। ईटिंग और अनहेल्दी ईटिंग में डिफरेंस आता है, राइट। इसे आप एकदम एकदम ज्यादा ही किस कंसिस्टेंसी में पीसना चाह रहे हैं, लाइक ज्यादा एकदम फ्लोवी, या लाइक हल्की सी थिक? ओके, It's become nice, mushy, pulpy. अच्छा इसकी ये थोड़ा थिक है, हाँ, ठीक है ये। ओके। Okay, so this has become very soft and हाँ, mushy. एकदम mushy हो गया है वो। Okay, so we're going to start. हमारा आटा भी ready उसका टेक्सचर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखने से काफी अच्छा लग रहा है। है। ओके, सो इसका कलर भी काफी सुंदर है। तो अभी हम क्या करेंगे, we're going कहते हैं ना, to फूड get में अगर to, जितना कलर होता है अपने आंखों को ज्यादा भाता है, तो उसे खाने में ज्यादा मजा भी बिल्कुल, the आता है। more colors you have, the more color. In fact, ये तो है भी कि the more color you add to your food, the healthy it is. So when it comes to color, that doesn't mean food color, it means variety हाँ of sabzi and salads and you know all that. तो मेरा ये soup pan है, इसको हम heat कर रहे हैं। इसमें I'm going to be adding almost a tablespoon of olive oil. ओके। थोड़ा स्लो करते हैं, और जब तक ये हीट अप हो रहा है, अच्छा, आप इसे हाई हीट पे? नहीं अभी फिलहाल मैंने स्लो करी है। ओके, और ये चॉप्ड अनियंस है, और ये मेरा जिंजर और गार्लिक है। So I'm going to chop some ginger and garlic here. ओके। तो
जिंजर एंड अच्छा ये जिंजर और अदरक गार्लिक का जो पेस्ट भी मिलता है आई गेस मार्केट में, राइट? तो हाँ हाँ, अगर जल्दी है तो वो use कर सकते हैं क्या? इज इट दैट गुड? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना कि फ्रेश इंग्रेडिएंट, ताजा और हाँ, ज्यादा, हाँ मुझे वो ऑब्वियसली। नहीं भाता है। मैं अपनी कुकिंग में बहुत कम यूज़ करती हूँ रेडीमेड गार्लिक, जिंजर या जो भी है। आई प्रेफर कि हम्म। फ्रेश हो। इवन जो मसाला मैं ग्राइंड करती हूँ मेरे खाने में, एनीथिंग दैट आई हम्म। यूज़, आई प्रेफर फ्रेश। So this is a very small piece, almost a tablespoon of ginger जो हमने लिया है, and around 2 to 3 लहसुन की कलियां लेंगे हम, 2 या 3। तो इसे फाइन चॉप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे भी गार्लिक देख के एक चीज याद आ गया, मुझे आपसे कुछ पूछना है। डू यू हैव सम अनदर ट्रिक जिससे हम गार्लिक को फटाफट उसको पील कर सके? बिकॉज ये बहुत दिक्कत होती है जब हम कुछ ज्यादा, जिसके अंदर गार्लिक का यूज अब ज्यादा होता है, या मैं फिर अगर अपना हम एक अपने बताती हूँ। हाँ, रेगुलर स्केड्यूल में जब, देयर आर टू ट्रिक्स। ओके, एक तो जो मैं बहुत हाँ, कॉमनली यूज करती हूँ, आई हैव अ बिग फैमिली, ओके, आई हैव अ हम्म, फैमिली ऑफ 8 पीपल। सो मेरे यहाँ क्वांटिटी भी उस हिसाब से बनती है, इट्स लार्जर हाँ, क्वांटिटी। तो हाँ, स्पेसिफिकली जब कुछ नॉनवेज बनना हो, या जैसे पाव भाजी है जिसमें क्वांटिटी ज्यादा बननी है, हाँ, तो मैं क्या करती हूँ, लहसुन को पानी में भिगो देती हूँ थोड़ी देर, फिर उसका छिलका ओके, सॉफ्ट हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू हल्के से, ये हाथ से हाँ, ही निकल जाता है, इतनी मेहनत नहीं लगती है। अ, मैं इस बातें करते करते इसमें अनियंस डाल रही हूँ, सो दैट हमारा बातें भी होती रहे और काम भी होता रहे। हाँ, ये भी है। आपने अभी अनियन डाला ना उसके अंदर? हाँ, अनियन डाला है मैंने, और साथ ही में मैं ये जिंजर गार्लिक भी डाल रही हूँ। ओके, इसको हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, लेट दिस सॉटे। मैंने देखिए फ्लेम ना, क्योंकि ये मेरा, अच्छा, बर्तन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ये मेरा स्टील का सॉस पैन है। तो स्टील सॉस पैन ना जल्दी हीट हो जाता है, तो मुझे अच्छा, एक्चुअली इस पे मीडियम या हाई हीट करने की जरूरत नहीं है। इवन ऑन अ स्लो फ्लेम आई विल बी एबल टू डू दिस। ओके। मतलब खाने बनाने में मतलब बर्तन से लेकर इंग्रेडिएंट से लेकर टाइम से लेकर सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, एवरीथिंग, तब जाके हेल्दी और एवरीथिंग, टेस्टी खाना बनता है। और जिनको बिल्कुल, कुकिंग करनी आती है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम, जिनको आती है। और जिनको नहीं आती है तो सीख ले, नहीं आती कोई बात नहीं, हम बना के खिलाते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतनी सारी तो इजी इजी रेसिपीज भी है हमारे पास, तो आई डोंट थिंक तो इसमें ज्यादा समय लगने वाला है। हाँ तो हाँ, नहीं आती वो जरूर सीखें, और कुछ टेस्टी और हेल्दी अपने लिए बनाते रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको थोड़ा सा और करेंगे हम, ताकि वो एक कच्चापन जो है वो हाँ, निकल जाए, जिंजर गार्लिक का भी। और अनियन हमारी तो पिंक होने लगी ही है। ओके, आई कैन फील द अरोमा और स्मेल द अरोमा और अदर ऑफ जिंजर एंड गार्लिक। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, जो और खाने की ये खुशबू है, और पकाने की जो सिजलिंग आवाज है, सो ये सब चीजें मुझे बहुत एक्साइट करती है। तो मैंने कि मेरी फिश फ्राई हो रही है, या मेरी कुछ भी मैं ग्रिल कर रही हूँ, या बेक कर रही हूँ, बेकिंग अ केक और समथिंग लाइक दैट, सो इट्स लाइक इट्स वेरी स्टिमुलेटिंग दिस। सो ट्रू। और प्लस ये ऑनियन गार्लिक एंड जिंजर वाला स्टेप आई गेस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेप इन इंडियन हाउस होल्ड लगता है। एब्सोल्युटली, लाइक अक्सर हम मतलब अपने हमारा, खाने में ये हाँ, बेसिक स्टेप होता है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब तक प्याज ना और डालें, या लहसुन अदरक का पेस्ट, हम्म, या लहसुन अदरक ना डालें, तो होता है ना, मजा नहीं आता। बट ऑब्वियसली फॉर पीपल हु आर कॉन्शियस, या फिर जो जैन फूड खाना पसंद हाँ, करते हैं, देयर आर ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। या मैंने, जब तक मैंने जैन फूड नहीं खाया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा टेस्ट करता होगा, या कैसे लोग खाते हैं। तो आई माई सेल्फ वॉज अमेज्ड जब आई हैड कपल ऑफ जैन फ्रेंड्स। तो उनके कॉलेज टाइम में उनके टिफिन से जब मैं खाती थी, जैन पाव या भाजी, जैन बड़ा पाव, जो एक्चुअली आलू से नहीं बना है पर केले से बना है। तो ओ आई वाह, वाज अमेज्ड। तो आई वाज लाइक वाओ, ये कैसे होता है, और ये इतना टेस्टी कैसे है बिना आलू के। बिकॉज वड़ा पाव फॉर अस इज आलू, आलू चाहिए। सीरियसली।
एंड जैन फूड इट्स वेरी यूनिक बिकॉज मैंने एक गुजराती एक डिश खाई थी उंधियो. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुजराती डिश एंड जिनके यहाँ से खाई थी लाइक वो जैन थे. आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर ना कांदा यूज है ना उसके अंदर अदरक सॉरी ना लहसुन यूज किया था एंड इट वाज वेरी टेस्टी. तो कहते हैं ना कि हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स है सब लोग एक ना एक चीज में उनकी एक स्पेशलिटी होती है. आई थिंक अभी हमारे में अदरक लहसुन कांदे के बिना खाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट जो लोग जिसका यूज ही नहीं करते उनके लिए वो उनको उन चीजों को यूज करना डिफिकल्ट हो जाता होगा. तो वो उनका जो तरीका होता है वो उनका टेस्टी और हेल्दी तरीका होता है और हमारा जो तरीका होता है वो भी हमारा टेस्टी और हेल्दी तरीका होता है. इट्स लाइक डाइवर्सिटी यू नो कुकिंग में भी इतने सारे. अभी मैंने इसमें सॉल्ट डाला है. ओके. ऑलमोस्ट हाफ अ टीस्पून. थोड़ा थोड़ा करके भी आई प्रेफर एडिंग सॉल्ट बिकॉज एक साथ कभी ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होती है. ओके. हाँ. आई एम आल्सो गोइंग टू ऐड वेजिटेबल स्टॉक. अच्छा, वेजिटेबल स्टॉक की कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है. आपको जितना थिक सूप चाहिए, इफ यू वांट अ लिटिल वाटरी, थोड़ा सा यू नो रनी सूप बिकॉज बाय इटसेल्फ दिस इज गोइंग टू बी अ थिक सूप. तो आपके हिसाब से आप डालेंगे इसमें. तो मैं भी यू नो अंदाजे से ही डाल रही हूँ. अब तक शायद मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप डाला है. मेरे पास आई थिंक ये 500 ml का इसमें पानी है. या तो अभी जो आप अभी कुक कर रहे हैं वो मीडियम फ्लेम में कर रहे हो ना? नहीं, अभी स्लो फ्लेम पर ही है. अभी मैं थोड़ा सा इसको मीडियम पे कर देती हूँ. ओके. ठीक है. जस्ट ब्रिंग इट टू अ बॉयल. अभी ये कुक होगा तो फिर और भी कलर इसका ब्राइट हो जाएगा. ये वैसे भी बहुत ही ये लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं स्टॉक रख देती हूँ स्टैंड बाय पे. अगर मुझे लगा तो हम और डालेंगे. अच्छा, मैं इसमें टू एनहांस द टेस्ट आई एम आल्सो एडिंग क्रश्ड ब्लैक पेपर. सो दिस इज फ्रेश क्रश्ड ब्लैक पेपर. सूप और ब्लैक पेपर का बोलते हैं ना, एकदम राम मिलाई जोड़ी वाला टाइप से साथ है. ट्रू. फॉर मी सूप विदाउट ब्लैक पेपर इज मजा नहीं आएगा. I prefer soup with black. So we just let it simmer. Okay. आपने इसमें नमक भी डाला है ना? इसके पहले डाला था, अभी आप ब्लैक पेपर डालते हैं. तो इसके अंदर मतलब ये सूप में ज्यादा कुछ हेवी इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज किया है हमने. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये बहुत ही डिलीशियस तो वैसी भी लग रही है. आई रियली विश ये वर्चुअल नहीं होता. पूर्णिमा जी सच्ची कह रही है, ये आई रियली विश ये वर्चुअल नहीं होता. सच्ची. So we are going to go to the cracker. Okay, मैंने इस पे निकाल लिया है. मैंने रोलिंग पैन पे अब हम इसे बेलेंगे. ओके. अच्छा, जब इसे हम रोल कर रहे हैं तो कभी कभी यू नो हम फ्लावर या फिर ऑयल यूज कर लेते हैं. मैंने ऑयल तो इसमें लगाया हुआ ही है ना पहले आटे में. तो सी माय पेन इज ऑलरेडी ऑयल लग गया है. हाँ, तो मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट हैव टू मैन्यूवर दिस. अच्छा, राजगीरा का आज मैंने एक हैक्स, यू नो आई हैव दिस की लाइव जाने से पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं एंड ऑल दैट. तो मुझे खुद को पहले पता नहीं था क्योंकि राजगीरा का आटा आप देखो, दिस इज नॉट लाइक गेहूं. इतनी आसानी से हैंडल नहीं होता है. इनफैक्ट ऐसा होता है कि क्रैक हो जाता है. मैं जिसको बता रही हूँ इसको, आई एम डूइंग इट वेरी कॉशियसली. देयर आर चांसेस कि ये क्रैक हो जाए. तो उसके लिए आज मैंने एक हैक पढ़ा जो मैं खुद यूज करना भूल गई बिकॉज मैंने कभी वो यूज नहीं करा है. यू हैव टू ऐड 2 tablespoon ऑफ मिल्क. तो आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं वांट टू ट्राई, 2 चम्मच दूध डाल लीजिए आटा गूंदने में. मिल्क. अच्छा. तो कहते हैं कि आटा अच्छा इजी टू हैंडल हो जाता है. मेरा आटा ये क्रैक हो गया है. वो थोड़ा हो जाता है. बट अमूमन राजगीरा का आटा होता है. मेरे पास एक और हैक मेरे दिमाग में जस्ट अभी आया. हाँ, मेरे दिमाग में एक चीज अभी आई है, वेदर इट्स गोइंग टू वर्क और नॉट. हम जैसे एल्युमिनियम फॉइल या फिर वो क्लीन फिल्म होती है उसको इसके ऊपर रख के या फिर कोई हैवी प्लेट को रख के
उसको अगर जो हमारी जो चौके हैं उसको पलट के निकाल सकते हैं क्या? अगर वो काम करता है तो, लेकिन वो थोड़ा हैवी नहीं हो जाएगा? बार बार वो नीचे का जो बेस है उसको पलटने की जरूरत पड़ जाएगी, राइट? वही मतलब इसको प्यार से करना बट लाइक मैं एक बार जब बनाऊंगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई दैट हैक जो मेरे दिमाग में आया है. बिल्कुल लेट्स सी इफ दैट वर्क्स और नॉट. यूज ही कर लेती मैंने ये बिगाड़ दिया है तो आई टेक टिप फ्रॉम यू कुछ ओके. लर्निंग टुगेदर आप मुझसे सीखे मैं आपसे सीख रही हूँ सो मैं ना बेकिंग शीट ले रही हूँ जिसमें जो हम केक वगैरह में यूज करते हैं सो लेट्स ट्राई डूइंग दैट अगर उस पे होता है तो एल्यूमिनियम फॉइल भी है तो क्विकली आई एम गोइंग टू कट दिस एंड आई एम श्योर इससे ये ज्यादा तमीजी से पेश आएगा आता आई गेस दिस थोड़ा विल सा वर्क, बुद्धि क्योंकि है मेरे दिमाग में वही आया था अभी, बस थोड़ा मैंने ज्यादा हैवी बोल दिया, पूरा बेस उठा के पलटने का, जो नहीं होना चाहिए था. आप अभी जो कर रहे हो, आई गेस दैट शुड बी डन. लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट, और होना भी चाहिए. Sure, sure. So we're going to do this, and let me see if I roll it on this. See, it's working, Khushbu. अब मे बी आप शायद उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी 5 मिनट पेपर रख के आप उसको रोल करें क्या, शायद तो शायद Oh उसे निकालने dear. में भी इजी होगी, हाँ, ये भी roll हो गया है हमारा. है ना? मैं इसी को ही मैन्युवर कर देती हूँ. हाँ, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी लग रहा है पिछले वाले की कंपैरेटिव. हाँ हाँ, वो रिस्की मैटर हो गया था. निकलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? हाँ, तो मैं क्या करूंगी ना मैं ये इसी के साथ ही बेक करूंगी आपका पेपर पे ही हैक लगे काम कर लगे. गया पूर्णिमा जी. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, परफेक्ट. आपका हैक काम कर गया. Yes yes. Thanks to you, Khushbu. कोई ना, आपने मुझसे मुझे आपसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है, तो थोड़ा तो दिमाग हम भी लगा सकते थोड़ा हैं. क्यों बहुत बहुत. तो इसको मैं अपना अवन प्री हीट पे रख रही हूँ. ओके. Let's get started with the baking. 7 to 10 minutes के करीब इसको रखा है. थोड़ा सा और हम पतला कर लेते हैं. You can see the thickness. बहुत ज्यादा थिक हाँ भी नहीं है रोटी जैसा ही है. इसको एक राउंड और मार के ना बेलन थोड़ा सा रोल करके और एक पतला कर देती हूँ ताकि वो बेक होने में जल्दी हो जाए और ज्यादा टाइम ना लगे. अच्छा, अब इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमारा सूप भी देखिए बॉईल हो रहा है. सो इट इज लुकिंग रियली नाइस. हम इसे थोड़ा सा और हाँ. होने देते हैं. आई जस्ट चेक. एब्सोल्युटली फैबुलस लग रहा है. आई थिंक वी कैन ऐड अ लिटिल मोर स्टॉक टू दिस सो दैट यू नो थिकनेस देख लीजिए काफी थिक है अभी. आई विल ऐड अ लिटिल स्टॉक. इट डिपेंड्स ना, अगर किसी को इतनी थिकनेस हाँ अगर थिक जमती है चाहिए तो तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं. और जिनको अगर ठीक है. कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ्लोई चाहिए, सो दे कैन ऐड मोर स्टॉक इनटू दिस. मोर स्टॉक एब्सोल्युटली. तो ऑलमोस्ट ये रेडी है. काफी बढ़िया लग रही है अभी पूर्णिमा जी, सच्ची. थैंक यू. अभी देखिए ये जो मेरा तिल है इसको हाँ, मैं सेंस इस में. फ्लोर पे just going to sprinkle it. और ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है उसके ऊपर. हाँ तो वो जी जब हाँ पक के जी. आएगा तो कलरफुल, मतलब Yes, it's going to be colorful. It's going to be looking wow. और खाने में भी of course. And इस पे हम थोड़ा सा बेलन कराएंगे क्योंकि क्या होता है ना बेक करने में I've tried that recipe कि आप सिर्फ स्प्रिंकल कर दो और बेक कर दो ना तो वो क्या है आफ्टर हाँ बेकिंग ना वो अपने आप ही झड़ जाते हैं. तो आपके हाँ एक्चुअल क्रैकर पे या ब्रेड पे कुछ रहता नहीं है. तो जब आप थोड़ा सा रोल करके उन्हें सेट कर देते हैं ना सो देन एटलीस्ट दे स्टिक. तो अब हम क्या करेंगे हम इसे कट करेंगे. ओके. कट दिस इनटू पीसेस. आपको जैसे चाहिए जो शेप चाहिए. You want to use a cookie cutter and give it a round or an oval shape, you can do that. मैं अभी थोड़े से लंबे क्रैकर्स में काट रही हूँ because we are going to serve it with a soup, so that is how it is.
ये फिर अगर हम बच्चों के लिए बना रहे होंगे तो वी कैन यूज दैट कुकी कटर, और हम बहुत सारे Shapes, राउंड, yeah, स्टार या yeah. हार्ट शेप के क्रैकर्स बनाएंगे, बिकॉज बच्चों के लिए तो प्रेजेंटेशन ज्यादा मायने बिल्कुल करता है। बिल्कुल उनको कलर दिखे, उनको शेप दिखे, उनको कुछ वेराइटी बिल्कुल बिल्कुल दिखे तो दे ईट, और प्लस उनको तो इस चीज को, और प्लस जो हमारा पंपकिन सूप है उसके ऊपर भी हल्का सा अगर हाँ हम मतलब इन केस इफ वी कैन यूज क्रीम, तो एक स्माइली वगैरह बना के हम उसको सर्व कर सके, बिल्कुल क्रैकर बिल्कुल में डिजाइन बना के उसे बेक कर सके, तो ऑब्वियसली आप देख इंटरेस्टिंग सकते हो हैं जाएगा ऑलमोस्ट, उनके लिए। अगर हम ये तो बच्चों अच्छी के लिए भी से ये काफी फायदेमंद हो जाएगी, और उनको बिल्कुल खाने के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। yes. तो अगर आप तो देखिए ये थोड़े क्रैकर्स से जो कट चुके नीट हैं, वाले अब हैं, जैसे ऑलमोस्ट 10 क्रैकर्स बने हैं इसमें एक कप में, एंड देन द रेस्ट आल्सो यू कैन मंच. So presentation wise के लिए at least we have 10 good looking crackers with us. ओके। So I'm going to be putting it on my baking tray. Okay, and थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा के मैं ऊपर से टच अप करूंगी. You can use either a brush. मैं somehow I know I'm very rustic in my cooking. I like using more of hands. जो चीज हाथ से हो जाए उसके लिए additional चीजें क्यों इस्तेमाल करना. या So ऑब्वियसली। it will be looking nice. So हल्का सा pat with an olive oil, and this will go straight in the oven at almost 180 degrees for approximately 7 to 10 minutes. So मेरा oven कितने देर के लिए at least 10 minutes. कितने देर के लिए बेक होगा पूर्णिमा जी? At least 10 minutes. At ओके। least 10 minutes. So ओ अच्छा, and I have put it तो on. हम ये क्रैकर को टी टाइम और ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं, बिकॉज नीडिंग में 5 नीड करने के बाद 5 मिनट उसे हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं, तो 15 मिनट्स उधर हो गया, 10 मिनट्स इधर हो गया, ओ ओके, 25 बिल्कुल मिनट्स बिल्कुल अप्रॉक्स, और क्रैकर रेडी। बिल्कुल yes. और इस सूप को थोड़ा सा richness देने के लिए I would prefer adding a little of fresh cream. So मैं almost like 2 to 3 spoon fresh cream लूंगी. ओके। This is my fresh cream thick. Okay, I'm adding a little stock. इन्हें से whip कर सको थोड़ा सा mix करके ओके, उसका thickness कम हो जाएगा. So I'm just going to ये mix it up. हमारे डिप के लिए बना रहे हो आप? No, ये हम सूप में ऐड कर रहे हैं. To give a creaminess ओके to the soup. Okay. ओके ओके। डू वी हैव एनी अनदर सब्स्टिट्यूट फॉर दिस? Coconut cream. हाँ। कोकोनट क्रीम आप यूज कर सकते हो. एंड पीपल हु आर कॉन्शियस जिन्हें क्रीम नहीं ऐड करना है, यू कैन जस्ट डू विदाउट इट. हाँ, जब मैं मतलब क्रीम विदाउट डालती क्रीम। हूँ तो आई एम थिंकिंग ऑफ क्रीम डालते वक्त मैंने मेरा गैस स्विच ऑफ कर दिया है. ओके। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड व्हेन द गैस इज ऑफ, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि हमारी क्रीम कर्डल हो जाए, या फिर समटाइम्स इफ इट इज हीटेड, टेम्परेचर हाई हो तो क्रीम फट सकती है. So we don't want that to happen to us. So we want it to blend very richly and very nicely. ओके, तो अगर अगर इसको थोड़ा सा और हेल्दी करें तो हम क्रीम को स्किप कर सकते हैं. Yes, you और can. हम थोड़ा थिक वाला कंसिस्टेंसी पे स्टिक करेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके। आप देख सकते हैं इसका कलर और एनहांस हो गया है. ओके. हाँ. With cream it has enhanced. इसमें एक हल्का सा richness लग रहा है, that rich portion has been added. इसे बचा के डाल ही देते हैं. And my soup is looking absolutely beautiful, stunning. Yeah, the color is very pretty. Taste तो बनता है. So I'm going to be tasting so that everything is fine. So उधर हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है. Yes, so I'm going to be tasting. बहुत गर्म है. Color is very pretty. Seriously. Awesome. बताइए कैसी है? Oh wow. Awesome. Awesome. I cannot explain this. You know,
एक इसमें जो एक बोलते ना वॉल्यूम ऑफ पंपकिन, हल्का सा टेस्ट. Ginger is giving a very good taste. Okay. And pepper. As I said, I'm a big fan of pepper. I just love pepper. अगर personally मेरे taste के लिए जाएंगे तो I can add some more pepper to this. So I like it a little heaty and ठंड में गर्मी वाला मजा आना चाहिए. So, but for the viewers, मैं अभी फिलहाल नहीं add कर रही हूँ. Actually. So I think this is just fantastic soup. Actually, you need तो मतलब हमारा soup almost ready है. बिल्कुल. So we are just waiting for our bread to bake. तब तक हम हमारी dip की तैयारी करते हैं. और मुझे ये सूप देख के एक आइडिया आ गया, जब हम वो नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, जब हम अपने कंबल में घुस के अच्छी खासी मूवी देखते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट इंस्टेंट रेमन नूडल्स, वी कैन श्योरली गो फॉर दिस हेल्दी एंड टेस्टी ऑप्शन लाइक पंपकिन सूप. तो मूवी का देखने का तो मजा तो उतना ही आना, और बाकी खाने में तो नो कॉम्प्रोमाइज. यस, अभी ये देखिए मैंने ये थिक कर्ड लिया है. अच्छा, इसमें भी आई डोंट नो, होम कुक्स ऑलवेज हैव अ हैक फॉर एवरीथिंग. हम वो बोलते हैं एडजस्ट करना आता है हमें. 19-20 कुछ कम हो गया, कुछ कर दिया. So that is what. So we don't. So I think that is what the trick is. I've heard even many chefs, celebrity chefs say, कि अच्छा खाना बनाने का जो अगर बोलते ना एक नुस्खा या the tip. Sorry यार, मेरी हिंदी आज में निकल रही है. Tip is. कोई बात नहीं, समझ गए, भावना पहुंच गई. हाँ, भावनाएं पहुंचनी चाहिए. मराठी में हमारा एक फ्रेम है ना, भावना पोचली तुमसे. So अच्छा, इसमें मैंने अभी फिलहाल ये फ्रेश दही ली है. दही को आपको अगर बहुत ही चीजी या एक्चुअली जैसे क्रैकर के अलावा अगर आपको सिर्फ क्रैकर के साथ बनाना है, टिपिकली सालसा क्रैकर एंड डिप, तो इसको आप और गाढ़ा कर सकते हैं हंग कर्ड की तरह. यू कैन पुट इट इन अ मसलिन क्लॉथ. क्योंकि हमारे सूप के साथ है तो मैंने सोचा इतनी जरूरत नहीं है. सो आई वांटेड दैट वन स्टेप. अच्छा, इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए आई एम क्रशिंग गार्लिक. 2 गार्लिक के मैंने 2 कली ली है लहसुन की. सॉरी, नॉट गार्लिक. हाँ, गार्लिक. मेरा कैमरामैन थोड़ा सा मुझे गाली की डोंट वरी, लहसुन. लाइव आने कंफ्यूज कर रहे हैं. अपना मजा भी होता है और अपनी एंजाइटी भी होती है, बिकॉज़ वन यू कैन नॉट सी द ऑडियंस एंड यू गॉट टू बी एट इट. सो मैंने हल्का सा इसको क्रश कर दिया है. तो बहुत पेस्ट या ऐसे नहीं करा है, क्रश ही रखा है. और मेरी दही रेडी है. ओके. It's like garlic dip. Yes. So it's a cheesy garlic dip. में हम गार्लिक डालेंगे to enhance flavor. Without cheese. And trust me, अगर आप ये डिप खाएंगे ना, आपको बाहर का या जो रेडीमेड वगैरह मिलते हैं ना, उसमें इतना मजा नहीं आएगा. मैंने गार्लिक डाला है. I'm getting salt. Okay. So हमारे पास है cheesy garlic dip without cheese. Yes. I've added healthy version. Okay. And to add color to this, I am adding little bit of chili flakes. आप चाहे तो इसमें mixed herb डाल दीजिए. You can pair it up with any of your Italian thing. So little, just a pinch of chili flakes. Chili flakes. और जो मेरे पास है, I think this is a little spicy one. So कम ही ऐड करा है. You can add black pepper. आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ black pepper डालना है. या in fact you can do a lot of variety. आप इसमें mixed herbs जो मिलता है हमारा Italian herbs, वो डाल सकते हैं. You can just do plain oregano. So a lot of variation can be done in this. And because we are pairing it up with soup, so we really don't need such strong flavors. We keep it simple. Okay. So you can see the creaminess, how creamy it has become, flowy and creamy. Absolutely beautiful texture. इसमें आप चाहें तो कुछ भी सैलेड्स, हाँ सैलेड्स इसमें कर सकते हैं आप.
to add to the flavor, you can also add olive oil. So I will also add a little half a teaspoon, जैसे थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा very Okay. light olive oil. Just mix it, whisk it well. Olive oil से देखिए एक अच्छा सा glaze भी आ गया है, which I am able to appreciate. Yeah, even I can see it. Yeah, so there's a nice थोड़ा glaze. shiny shiny And it सा। only, अगर आप extra virgin olive oil डालेंगे तो स्वाद तो wow. So I don't have the extra virgin. I just have the olive अच्छी। oil. This is ready, man. This is ready. हमारा डिप रेडी है, हमारा सूप रेडी है, हमारा क्रैकर पे हम एक नजर घुमा लेते हैं। So हमारा सूप रेडी हो गया, हमारा डिप भी रेडी हो गया है, और अब हमारा क्रैकर एक आई थिंक a minute or two and it should be fine. हम प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैं तब तक थोड़ा सा ये फ्रेश कोरिएंडर चॉप कर लेती हूँ so that हमारा गार्निश भी हो जाएगा सूप का। हाँ। सो येलो और एकदम क्रीमी रिच पंपकिन के ऊपर ग्रीन कलर, एक्चुअली वेरी कलरफुल है ना। यस, एकदम फाइन चॉप कर दिया है मैंने। मेरा कोरिएंडर भी रेडी है। सो ये आई गेस अब ये जो डिश है जो आपने बनाई इतनी इजीली, इसको देख के मेरे दिमाग में एक डायलॉग आ गया है। जब वो कहते हैं ना कि भाई हेल्दी फूड आर वेरी बोरिंग, तो आप कह सकते हैं ना भाई कौन कहता है कि हेल्दी फूड इतनी बोरिंग होती है। बिल्कुल एक्चुअली टेस्टी, कलरफुल एंड ऑब्वियसली, और जब हमें पता है कि क्रैकर्स भी हो गए लगता है लगभग। यस, थोड़ा सा लाइक another minute or two we let it do because नीचे से तो एकदम जस्ट रेडी हो गया है वो। सो ऊपर से हल्का सा उसका कलर पकड़ ले, we are done. I think हम सूप प्लेटिंग तो कर ही सकते हैं so that we are ready, you know, we are not waiting too much. Obviously. मैं अपना थोड़ा सा वर्क स्टेशन भी क्लीन कर लेती हूँ। Easier for you. Just येलो व्हाइट, एकदम ना समर वाला कलर आ गया है, समर कॉम्बिनेशन। येलो व्हाइट ग्रीन है ना, एकदम सर्दियों में गर्मियों का मजा। इसलिए सूप अच्छी लगती है सर्दियों में, गर्मी का मजा। और खाने की सबसे एक बात होती है ना, जब हमको पता है कि वो चीज हेल्दी होती है तो हम बिना गिल्ट के उसे खाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। तो इसीलिए हेल्दी ईटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम खुद भी सेटिस्फाई हो और जितना भी खाएं उसको माइंडफुली खाएं, और बस यस बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आदतें बदलनी है और अपने हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा। तो शुरुआत अपने खाने से शुरू करें तो ज्यादा बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ भी मैं तो बोलूंगी ये सूप और ये जो क्रैकर कॉम्बिनेशन है या इवन द सूप बाय इटसेल्फ, इट इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर अ मील। यू नो, आपको रेगुलर नहीं खाना है रोटी सब्जी दाल चावल या रेगुलर स्टफ नहीं खाना है, just a generous portion, healthy portion of your soup, I think that should be just good enough to go. बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी और चीज के साथ में। इतने में तो पेट भर जाएगा हमारा पूरा, क्रैकर डिप एंड पंपकिन सूप के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। So we are going to plate this. So हमारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी तैयार है। और जो इसमें पंपकिन का जो स्मोकीनेस का जो एक टेस्ट आ रहा है ना, सी पंपकिन इज बेसिकली स्वीट, जो उसका जो तासीर है या जो उसका टेस्ट है दैट इज स्वीट साइड। उसकी सब्जी भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा वो मीठे साइड में जाता है, बट ये जैसे मैंने अभी इसको चार ग्रिल करा है या गैस पे डायरेक्टली रोस्ट करा है, यू नो दैट एंड फ्लेवर हैज बीन एनहांस्ड। हाँ, तो इट्स रियली कम आउट वेल, एंड वो जो स्मोकीनेस है वो भी फील हो रहा है।
So you know it's absolutely beautiful and इसको थोड़ा सा good looking बनाएंगे. We're going to add a dash of cream. So I'm going to be adding some fresh cream so that it looks good, and some bit of coriander, a drizzle of coriander, and I could just put it in the center. ये हो गया येलो और ग्रीन का इतना ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन. सच्ची मेरा डिप रेडी है. मेरी क्रैकर्स, pumpkin soup be ready, dip be ready. We are just waiting for the crackers now. yes, the crackers are crackling up. Crackers are cracking us up. Yes, it's done. It's done. You can just see beautiful brown. Oh God! Oh wow, so nice. इसकी अमृत का crackers. Seriously. Look at that. इसकी क्रिस्पी वाली साउंड भी आ रही है उसमें. मैं आपको वो भी दिखाऊंगी. थोड़े से गर्म है ये. Let it settle a bit. The crunch, it's just breaking up. It's so biscuity. Oh wow. ये एक्चुअली काफी ज्यादा क्रिस्पी बना है. कुरकुरे एकदम. Wow, I'm loving this. We're going to be plating crackers. अच्छी गर्मा गर्म crackers. We can stack it up. Look at the beautiful color. I'm just loving this. मैं एक छोटा पीस खा लेती हूँ. Actually very pretty. और इसका जो क्रंच जो सुनाई दे रहा है वो उससे तो पता चल रहा है ये कितना क्रिस्पी बना है. You could hear the crunch I had. It is just awesome. I really वो आप जब वो आप वो पेपर से निकाल रहे हो ना तो वो काफी जब आप उसको ब्रेक कर रहे हो उसका क्रंच आ रहा है. So it really seems like कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है ये. So हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई ऑलमोस्ट. And it is warm. तो वो warm तो बोलते हैं ना गरम गरम खाने का. Awesome. It's beautiful. Yeah. So I'll pour a little dip on the sides. Okay. बिल्कुल रेडी है. चलो इसको थोड़ा सा कटोरी में डाल के सर्व करते हैं ताकि बाद के लिए फोटोग्राफी के लिए हमारे पास कुछ अच्छा हो जाए. यही डिफरेंस होता है एक रेगुलर जो कुकिंग करता और एक शेफ की बात है. बिकॉज कद्दू जैसी सब्जी का एक इतना टेस्टी सूप बनाना प्लस राजगीरा जिसका शायद का कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मेरे जैसे लोगों को, उसका इतना क्रंची और हेल्दी क्रैकर बनाना और चीजी डिप विदाउट चीज, यार इससे बड़ी क्या ही बात है. तो यू नो दिस इज द डिफरेंस आई विल से कि जो हम रेगुलर जो कुकिंग करते हैं और जो शेफ होते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. लेकिन एक चीज कॉमन ये होती है कि सब खाना खाते हैं. राइट पूर्णिमा जी? बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए हमारा ब्यूटीफुल रेडी है क्रैकर्स, ऑसम डिप एंड pumpkin soup. It's amazing. एक बार वो आप डिश को साथ में जूम पे दिखा दीजिए. ब्यूटीफुल, एकदम कलरफुल है एकदम. Absolutely. Thank you so much. Yeah. नहीं कर सकती. चलो लास्ट में अच्छी हिंदी निकली मेरी. Yeah. And it is fantastic. It is just fantastic. So thank you so much पूर्णिमा जी, आपने इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी रेसिपी बताई हमारे सामने. तो इतनी अच्छी और टेस्टी रेसिपी बनाने के बाद मैं आपको एक सेशन तक तो स्टॉप नहीं करूंगी. यार डेफिनेटली बहुत मैं जल्दी से ट्राई करने वाली हूँ. ऑब्वियसली वी हैव अ वीकेंड हियर तो हमारे पास टाइम भी है.
we can cook this interesting and amazing recipe at our home with minimum ingredient, without any guilt. So let's go on. So Purnima ji, thank you so much for joining us with Fam Health. And हम आपके साथ फिर से एक लाइव सेशन करेंगे, फिर एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ में. बिल्कुल. In fact, we can do a tasty live session. Something more tastier and more healthier. Definitely. या तो पहले इसे खत्म करें और बाकी के सारे रेसिपीज भी देखिए हमारे फैमिली व्यूवर्स, और हमारे साथ जुड़े रहिए अपने हेल्थ से रिलेटेड सारे